Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. An Indian returned to space after 41 years. Tiranga on my shoulder, all of you with me. What a ride. Dragon with Sukla, three others to dock with ISS at 4:30 p.m. Kennedy Space Center launch 39A Axiom 4 mission. After a 28-hour journey through space, the Dragon spacecraft will dock with International Space Station. Uh, Allow for astronaut to transfer to only permanent research laboratory in space where they will spend their next 2 weeks carry out scientific experiment and engaging science outreach events. Shukla felt come 41 years after squadron leader Rakesh Sharma. He late retired as wing commander, traveled to space on the Soviet Union Soyuz T-11 spacecraft and spent about 8 days on board the Salyut 7 International Space Center of Russia. The Axiom 4 mission is part of NASA ongoing effort to encourage private players to undertake commercial mission to transport humans and cargo to the International Space Station and lower Earth orbit in order to focus on more space science research and interplanetary exploration. Uh, Subanshu Shukla commissioned in the Indian Air Force in 2006, and he has over 2,000 hours of flying experience. He has flown a variety of IAF fighter jet, including Sukhoi 30, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Havas, Danier, or AN-32 aircraft. Why NATO member agreed to increase their defense spending? North Atlantic Treaty Organization, the big increase in defense spending that United States President Donald Trump had demanded and restart the commitment of defense each other from attacking. A NATO member has agreed to spend 5% of economic output and gross domestic production (GDP), core defense and border defense and security related investment. Hefty increase of current goal 2% approval in alliance in 2014. NATO member will now spend 3.5% of their GDP on core defense such as troops, weapons. The item currently covered by old 2% target. They will spend further 1.5% of GDP on border defense and security relation related investments such as adopting roads, bridge, port, or use of military vehicles, cyber security, protection of energy pipeline. Now, NATO country will decide on it on where they find cash to invest more defense and how to allow it. The European Union has moved to try make it easier for spending defense, allow members to defense spending 1.5% of GDP each year for 4 years without any disciplinary step that would normally kick in. One of the national deficit is about 3% of GDP. Fight the After the fighting has stopped, Trump has focused force a fragile trash on Iran and Israel. Tehran need to space to negotiate and recapture Israel has so it can conduct a stand of war against Iranian homeland. But next to Iranian region, मैप के अकॉर्डिंग देखें तो टर्की, सीरिया, ईरान, जॉर्डन, इसराइल, सऊदी अरब. अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ हर्मोज, जो कि ओमान, यूएई और ईरान के साथ, और कुवैत, बहरीन और कतर के साथ बॉर्डर बनाती है. इसके अलावा जब हम
रीजनल प्लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें हुती जो यमन में है, हिजबुल्ला जो लेबनान में देखने के लिए मिलते हैं, और असद अल साहिब ईरानियन, उसमें इन सब की प्रेजेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली जो यूएई वाले रीजन में टेंशन क्रिएट होती हुई हमें दिखाई देती है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान डिड नॉट फाइट ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड इट वुड हैव टू लाइक टू अवॉइड द वॉर। ईरान Iranian leader and military could recognize itself enough to sustain or use missile against Israel, including ballistic missiles, जो रिसेंटली यूज किए गए थे। अल्जाइमर डिलेइंग जीन वैरायटी, कर ब्रेन इन्फ्लेमेटरी स्टडी। अल्जाइमर जो डिजीज है वो वन मेमोरी थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करती है, डिसीजन लेने की एबिलिटी को डिक्लाइन करती है, और इवेंचुअली जो डेली रूटीन्स के वर्क है उनके ऊपर इफेक्ट करती है। अगर हम परमानेंट चेंज की बात करें तो डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं विच कैन अकर ओवर टाइम कैन बी पास डाउन जनरेशन रिजल्ट इन जीन वेराइटी, नॉट ऑल ऑफ द प्रोड्यूस ए हार्मफुल इफेक्ट। जो कि जो भी ब्रेन की मेजर ड्राइव है न्यूरो डिजनरेट करने की या फिर एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर क्रिएट करने की, वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अगर जब हम सी गैस स्टंटिंग, सी गैस स्टिंग पाथवे के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, जो कि अल्जाइमर प्रोसेस और उसका सिग्निफिकेंट जो इफेक्ट है उसको कम करने में हेल्प करता है। वाई इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट समन लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि पुलिस और जो अदर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो समन नहीं कर सकते लीगल प्रोफेशनल्स को जो भी एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट को। अ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग, जो कि रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, जो कम्युनिकेशन बिटवीन लीगल एड एडवाइजर एंड द क्लाइंट आर प्राइवेट, meaning they cannot be disclosed to the third party. Section 132 of the BSA state that an advocate is not allowed to disclose any communication even after employed has ceased एक्सपेक्ट थ्री सर्कमस्टांसेस जब तक ना क्रिएट हो। पहला कि जो क्लाइंट है वो कंसर्न के साथ किया गया, दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो इनलीगल पर्पस को रिप्रेजेंट ना करती हो, थर्ड कि एडवोकेट ऑब्जर्व करे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज बीइंग कैरिंग आउट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयड, तभी उसको किया जा सकता है। जनता पार्टी गेन सलार दैट वाज स्ले बाय ओन जाइंट्स। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधाराओं पर निर्भर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता हुआ जब हम आरंभ के टाइम समय में देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है। इंडिया में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो क्रिएट हुई थी 1977 लोकसभा इलेक्शन के बाद, वो बीजेपी की थी, जिसमें कि मोरारजी देसाई को भारत का पहला गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाया गया था। बीजेपी के द्वारा फॉर्म किया गया था आरएसएस स्वयं सेवा संघ 1951 में, जो कि एक बीएसजे की तरह लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलाइन कर दिया गया था, जिसकी लेफ्टिस्ट अप्रोच जो कि कांग्रेस पार्टी के दिखते हैं, उसके साथ साथ राइटिस्ट अप्रोच के साथ बीजेपी की पार्टी की सोच क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, जिसमें जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर और राज नारायण जैसे जो लीडर्स थे उनकी अप्रोच और उनकी सोच हमें देखने के लिए मिलती है। इंदिरा स्टिल वैल्यू डेमोक्रेसी, हेल्प पोल नाउ इट अनडिक्लेयर इमरजेंसी।
इंटरव्यू जो कि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा कहा गया कि वी हैव नो आइडिया दैट जेपी मूवमेंट वुड शेक द regime. जेपी built the movement in such a way from पटना टू दिल्ली दैट इंदिरा वाज लेफ्ट क्लूलेस. 1971 में बांग्लादेश क्रिएट होने के बाद जब हम भारत के अंदर अनिश्चितताएं उठती हुई देखते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि जेपी मूवमेंट जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा स्टूडेंट्स के हित में एक मूवमेंट जो बिहार से चला आरंभ हुआ था और दिल्ली तक पहुंचा, जो कि आरंभ में बेस था कि किस तरह से जो कॉलेज की स्कूल की फीस है उनको कम किया जाए और जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंडीशंस है उनको सुधारा जाए, या फिर जो एक पूरी तरह से स्टूडेंट मूवमेंट की तरह से उभरा, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिशियन का या फिर जो प्रोटेक्शन है वो धीरे धीरे वोलेशन वॉयलेंट होता चला गया, जिसकी वजह से एक बड़े स्तर पर इस तरह का मूवमेंट क्रिएट होता हुआ दिखा जो दिल्ली से पटना से लेकर दिल्ली तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है. उस समय की अगर इमरजेंसी की बात करें तो उसके लिए आर्टिकल 356, 359, 365 के तहत जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनके ऊपर उनके तहत इमरजेंसी किसी भी स्टेट में और नेशनल लेवल पर 352 के तहत लगाई जाती है. लिबर्टी कैन कांट बी बार्टेड. सुप्रीम कोर्ट गाजियाबाद जेल अथॉरिटी. रिसेंटली देखा गया कि लिबर्टी इज द वैल्यूबल एंड प्रीशियस राइट गारंटी टू पर्सन. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो पे करे 5 लाख एज अ प्रोविजनल compensation a man who release was delaying after granting bail in April 29. जेल अथॉरिटी के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो बेल ऑर्डर ग्रांट किए गए थे उनमें वो सब क्लोज मेंशन नहीं था जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था. आर्टिकल 21 जीने का अधिकार प्रदान करता है, लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार. इंडिया ज्वाइन ब्रिक्स स्टेटमेंट एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान. ब्रिक्स ग्रुप grouping to express grave concern over military strike against Iran. PM Narendra Modi expected to travel Rio de Janeiro for BRICS summit on July 5 to 6. Iran expressed gratitude to India, freedom loving citizen, political party, institute, and other who stood aimed to attack by Israel and US. We express serious concern over any attack against peaceful nuclear installations that are carried out in violation of international law and relative resolution of International Atomic Agency. न्यूक्लियर सेफ्टी ग्राउंड होने चाहिए. सिक्योरिटी ऑलवेज बी अपहेल्ड इंक्लूडिंग आर्म कंफ्लिक्ट प्रोटेक्शन. प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए पीपल्स के लिए, और एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी हार्म्स है वो नहीं होने चाहिए. इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ है उनको फॉलो किया जाना चाहिए. उनका वोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर नहीं होना चाहिए. वर्ल्ड डिवाइस. द अर्थ इज द cradle of humanity, but mankind cannot be stay in cradle forever. रिसेंट कन्फ्लिक्ट को देखते हुए जो इसराइल, ईरान या फिर जॉर्डन, इसके अलावा जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं फिर एनवायरमेंट रिलेटेड हार्म की बात करते हैं, उन सभी के ऊपर देखा जा सकता है. ए डिफरेंट मिडिल ईस्ट, ईरान इसराइल वॉर signal a shift in regional power dynamics and recognize रीनॉकिंग फॉर तहरीन अलायंस. यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट है अगर वो ज्वाइन करता है
ईरान को, इसराइल को, अ, ईरान के अगेंस्ट वॉर में, तो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो ट्रम्प की मिलिट्री कर सक्सेस या फिर जो सपोर्ट है इसराइल को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ट्रेड किस तरह से इफेक्ट होगा, और वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरह से हार्म होगा, या फिर जो चेंजेस क्रिएट होंगे। सेकेंडली देख सकते हैं कि जो ईरानियन अथॉरिटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ है उसको साइन करेगी या नहीं करेगी, या फिर उनके ईरान के द्वारा जो एनपीए ट्रीटी है उसको लीव करने की बात की जा रही है, उसके ऊपर उनके क्या डिसीजन होंगे। थर्ड है कि किस तरह से जो ईरान रिजीम है वो, उसका टर्न क्या होगा, अगर हम जब बात करते हैं सिविलियंस की, या फिर जो डेयर टू आस्क मोरल लेजिटिमेसी क्या है होनी चाहिए किसी कंट्री की, या फिर उसके लीडरशिप की। और जब ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, या फिर जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ और जो इंटरनेशनल चार्टर्स है उनको किस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, या फिर उनकी वजह से टर्निंग पॉइंट इन यूरेशिया, जो नाटो, ट्रम्प क्वेश्चन नाटो रिलेवेंस एंड पुश फॉर डिसएग्रीमेंट टू इंडो पैसिफिक विल have to wing on new partnership and independent security challenges. European power can't simply solve their security problem by throwing money at military, जो कि रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरह से नाटो के द्वारा 5% जो जीडीपी का परसेंटेज है वो मिलिट्रिकल अलायंस के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो नाटो के मेंबर्स हैं उनके द्वारा खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल आंसरिंग है वो क्या होगी, किस तरह से सिक्योरिटी को और प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। रीथिंकिंग या इनोवेशन क्या होगी, करंट फाइट जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो हम देखते हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनको किस तरह से सुलझाया जाएगा, या फिर उनके लिए जो भी इंटरनेशनल चार्टर्स हैं या जो नियम है उनको उनके लिए नाटो, यूएन या फिर इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस जैसे अ, जो अथॉरिटीज है उनका क्या रोल होगा। और एशिया अलायंस के साथ जब हम अमेरिका एशिया की अलायंस देखते हैं, जो क्वाड और जो अदर ग्रुप क्रिएट होते हैं उनके लिए क्या आगे की जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में चेंजेस होंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया की जो डिपेंडिंग टाइज है ट्रम्प और अमेरिका के साथ, वो पॉजिटिव ली किस तरह से नेविगेट करेंगे और एमर्ज होंगी इस सिनेरियो में। बिल्ड ऑन outreach center effort toward increasing awareness of scheme in tribal communities and well center effort toward increasing awareness of scheme in tribal communities are welcome. They are difficult challenges. And national tribal affair launch launch an outreach program targeting around 1 lakh tribal domestic villages to ensure a doorstep delivery of two welfare scheme, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और प्रधानमंत्री धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसका एम है जो ट्राइबल्स के बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और जो वो सभी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाए। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो ट्राइबल्स को राइट दिए जाते हैं उनको पेंशन अकाउंट्स या फिर जो जनधन अकाउंट्स है उनको एनरोल किया जाए, और एग्जिस्टिंग स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि जो पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नेंस है थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू उसको सपोर्ट किया जा सके, ट्राइबल पॉपुलेशन को अवेयर किया जा सके। हम देखते हैं कि किस तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 75 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स को 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर नोटिफाइड किया गया था, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको फिल किया जा सके।
इसके लिए 63,843 विलेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लार्ज स्केल पर क्रिएट किया जा सके, उसको बेनिफिट पहुंचाया जा सके स्कीम का। और जो रीजनल जियो ग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी है और जो बैरियर्स है जो देखने के लिए मिलते हैं, उन इश्यूज के ऊपर उन इश्यूज को सोल्व किया जा सके। Second exam option only in three subjects. CBSE offered two exam for class 10, taking first test mandatory. Uh, Center Board of Secondary Education began offering two board examination for class 10 student from 2026 onward. All student will have to mandatory appear in first set of exam. Student will then be given an opportunity to improve their performance by but we'll have to choose three subjects: science, mathematics and social science, और टू अदर लैंग्वेजेस के जो भी फाइनल सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बेस है, जिसमें कि मेन एग्जामिनेशन है उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स को एक अदर ऑप्शन फर्दर एग्जामिनेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक resilience aim elevated global trade uncertainty। आरबीआई बुलेटिन, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो जियोपॉलिटिकल ट्रेड और अनसर्टेनिटी है उसको किस तरह से इंडिया के अंदर कर्व किया गया है। फिर जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं जो कि 6.5% रहने के लिए 2024-5 में एस्टिमेट किया गया था, उसके बाद भी प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करता है 4% पॉइंट को 2.4% पॉइंट रिस्पेक्टिवली जीडीपी के अंदर। उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरऑल जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है वो रिमेन रिबस्ट करती है। मई 2025 के अंदर जो की फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो है ई वे बिलिंग, गुड एंड सर्विस टैक्स रिवेन्यू, टोल कलेक्शन और डिजिटल पेमेंट सोल्विंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ showing strong growth. Hassle free good movement between state and under GST. July 1 mark as eighth anniversary of GST rollout. Industry feedback has improved the better tax administration and ease of doing business को रिप्रेजेंट करता है। 67% ऑफ रिस्पॉन्डिंग अप टू 55% इन 2024 noted that clarify and instruction issues under the GST help resolving on ground disputes. 44% of MSMEs note that progress in stability of e-invoicing and e-way billing. 49% of very large corporation values issuing of GST क्लैरिफिकेशन। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो सेक्टर्स है इनको मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जीएसटी विद 90% ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस एंड पॉजिटिव पार्टिसिपेशन। 45% ऑफ एमएसएमई prefer relationship rationalization of GST rate access sectors will 44% large and 47% very large corporates went effectively dispute resolving mechanism. If you want to stay if you want to start a business to be a billionaire, you are an idiot. You will never get there. Reliance chief recall Dhirubhai Ambani lessons. Focus on impact, not billionaires. Ambani message to entrepreneurs. Uh, we always take big risk because for us scale is important. The big risk we have taken so far was you at that time. It is our own money that we were investing. My father said me Reliance is a process. It's an institute that should last. You have to make sure that Reliance last beyond you and me. That's my commitment to him. As we chase the opportunities of technology into the future, some of the opportunities become bigger than our existing opportunities. Geo has now more than 470 million subscriber and continue to lead next generation technologies such as 5G, AI, cloud services. All of
My commitment to him is Reliance will least beyond. Ambani said in 2027, Reliance will celebrating its golden jubilee, but I want Reliance to continue serve India and humanity even after completing 100 years. Private sector share in capex for format dropped in 12 years. तो private corporates पब्लिक सेक्टर हाउसहोल्ड के बीच में ग्राफ, जब हम जीएफसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है फॉल हुआ है 12 ईयर्स में 33.1%, अगर फिजिकल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग स्लो डाउन देखने के लिए मिला है, जो कि आरबीआई जून बुलेटिन के अंदर शो करते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है हैज moderate since fiscal year 16 and household sector rise in 17. So fixed investment rate package 35.8% GDP in fiscal year 8 will slip to 27.3% fiscal year 2021. Gain the some movement after the pandemic. अगर हम 25 की बात करें जिसमें 29.9% ऑफ जीडीपी में देखने के लिए मिलता है. थर्मल एनर्जी गवर्नमेंट टू टैप अबेंडेंट ऑयल वेल. Government is study the potential of geothermal energy in three abundant oil wells in Bikaner with collaboration of IIT Chennai. They put pilot project include setting up 450 kilowatt facilities in oil well to gauge the commercial feasibility. On an average, global geothermal capacity had a utilization rate over 75% in 2023, compare with less than 30% of wind power and less than of 15% of solar panel, according to the International Energy Agency. Geothermal power plant can be operate flexibly in way they contribute to stability of electric grid, ensuring demand can be meet at all time and support the integration of variable renewable energy such as solar photovoltaic cells or wind. Horticulture out of 3.7 in 24 and 5. Indian production of horticulture crop is estimated to have increased by 3.66% to 367.72 million ton 24-25 crop years, according to the second advanced estimate released by the Union Agriculture Ministry. अगर हम 23 और 24 की बात करें तो 355.54 मिलियन टन प्रीवियसली देखने के लिए मिला था, जिसमें 20% का ड्रॉप ऑयल ओनियन प्रोडक्शन की वजह से लो हमें देखने के लिए मिला था. विजन टू क्रिएट कंसल्टिंग पावर हाउस मस्ट बी backed by supporting institutes framework. Big India for bet. इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उनको करने के लिए क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए उनके लिए प्रोवाइड होना चाहिए, जिसके लिए फाइनेंशियल और लॉजिकल जो सपोर्ट है सब्सिडी ग्रांट की जाती है. ओवरसीज एक्सपेंशन है इंक्लूड मार्केट एंटिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट है उनके ऊपर गवर्नमेंट को प्रोवाइडर रोल प्ले करना पड़ेगा. प्रेफरेंस एक्सेस जो है जो प्राइस क्वालिफिकेशन क्वालिटी का जो प्रेफरेंस है गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट किया जाता है कि ग्लोबली फर्म के अकॉर्डिंग न्यूट्रल डोमेस्टिक प्लेयर को वो करे. रेगुलेटिंग क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिंपली पाथवे जो है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का इंक्लूडिंग स्ट्रीमलाइन रूल ऑफ फॉरेन एफिलिएशन के साथ में जो इजी मोबिलिटी है इंडिया के प्रोफेशनल सर्विंग ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ होनी चाहिए. जिसके लिए जब हम इंडिया के अप्रोच की बात करते हैं रिजोल्विंग रेगुलेटिंग रिफॉर्म को अपनाते हैं, जो ट्रिपल आर की बात की जाती है एंटरप्रेन्योर लेवल को जो एम्बिशंस को क्रिएट करने की बात करते हैं ताकि रेयर विंडो अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और
कंसल्टेंसी होनी चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, और उनको प्रोवाइड की जा सके। वाई इंडिया मस्ट स्प्रेड इट्स ऑयल इम्पोर्ट बैक। जब हम की कंट्रीज की बात करते हैं जिनसे इंडिया ऑयल, क्रूड ऑयल बाय करता है, फिर नेचुरल गैसेस को, तो उसमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से रशिया, सऊदी अरब, इराक, यूएई से जब कंट्रियों से इंडिया जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। रशिया से 36% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, इराक से 20%, सऊदी अरब से 13%। और जब हम नेचुरल गैसेज और एलएनजी की बात करते हैं तो कतर काउंट करता है 41% ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स। अगर हम यूएस की बात करें तो 90%, और यूएई 13% जो ऑयल सप्लाई है उसकी पूरी करता है। रसिया जो है बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर, क्योंकि जब हम वॉल्यूम की बात करें तो 1.74 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। 45% ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल import imports are ship wise. The state of Hormuz, US barrel have grant movement with India to tackle the import over 1 MBD from US in April or June 2025. 88% of India crude oil कंजम्पशन एंड 45% ऑफ इट नेचुरल गैसेज कंजम्पशन जो है वो इंपोर्ट के थ्रू ही पूरी होती है। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो स्टेट ऑफ हर्मोज, स्टेट ऑफ वाइज स्टेट कनाल, या फिर जब केप ऑफ गुड होप्स और जो अदर रूट्स है जिनमें जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, किस तरह से जो इंपोर्ट रूट्स इंडिया के द्वारा अपनाए जाते हैं उनके लिए। द मिडिल क्लास मिसिंग फ्रॉम आवर ग्रोथ। अगर हम रिसर्च सेंटर प्राइस की बात करें जो डिफाइन करता है मिडिल क्लास इंडियंस को सम अर्निंग बेसिस पे, वो देखता है कि 1.09 लाख से 6.46 लाख पर ईयर जो बेस है वो है 2021 प्राइसिंग, जो बिलोंग करता है हाउस होल्ड अर्निंग को 5 लाख से 30 लाख एनुअली, और एंटिसिपेट करता है सेगमेंट और एक्सपेंडिंग फ्रॉम 432 मिलियन पीपल्स को 2021 की बात करेगा, जिसमें से 715 मिलियन जो है 2030 या 31 तक फ्यूचर के ऊपर एस्टिमेट किए जा सकते हैं, जो फॉर्म करेंगे 61% ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट फॉर पॉपुलेशन को। जब हम 1.66 बिलियन की बात करते हैं तो इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो ड्राइव करती है कंजम्पशन लेड ग्रोथ साइकिल के अंदर। अनलेस वी क्रिएट गुड जॉब्स, उसके लिए राइज करना पड़ेगा, जो रियल इनकम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाउस होल्ड को अफोर्डेबल क्रेडिट और मिडिल क्लास के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं उनको उन तक पहुंचाना होगा। लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स मूव गुड्स लाइक ए हॉर्स टू ट्रेड लाइक ए टाइगर। इंडिया must continue to improve its logistic infrastructure to fulfill its aspiration of becoming global trade powerhouse। जब हम वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो जो कि कहता है कि ऑफर करता है कि जो इंडेक्स है वो टैकल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को विद इन एंड बिटवीन द कंट्रीज, और टैकल करता है कि किस तरह से जो अकाउंट्स है वो 6 मेजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एफिशिएंसी कैसी है, कि कस्टम एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल शिपिंग, लॉजिस्टिक क्वालिटी कैसी है, ट्रैकिंग एंड जो ट्रेसिंग स्टेबिलिटी है वो क्या है, पंचुअलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम शिपमेंट के ऊपर बेस करते हैं। जब हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया ऑन द मूव, कि द कंट्री इज कैचिंग अप विद चाइना ऑन द मूव ऑफ गुड विद इन द अक्रॉस बॉर्डर, बट स्टिल हैव सम डिस्टेंस। 2014 और 23 को कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल रैंकिंग देख सकते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है 54 से 38/139 है। एलपीआई स्कोर की बात करें तो 3.4%, 3.4। टाइमलाइन रैंक की बात करें तो 51 से 35, और लॉजिस्टिक क्वालिटी रैंक की बात करें 52 से 38, और
इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग की बात करें तो 58 से 47 हमें देखने के लिए मिलती है। स्ट्रेटेजिकल क्रूड स्टॉक एट 6 new location, India need to list 90 days import cover a ride out stock. Expansion crucial, giving India high oil import dependency. इंडिया की बात करें तो जिसका 85% क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया। अगर हम कंपनी की बात करते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व है जो 6 लोकेशन की देखी जाती है, तो विशाखापट्टनम में 1.33 MMT, बेंगलुरु में 1.5 MMT और पंदूर में 2.5 MMT देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जब हम सेकंड राउंड की बात करते हैं तो वहाँ उड़ीसा के चंडीखेड़ा में 4 MMT और कर्नाटक के पंदूर में 2.5 MMT जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल पेट्रोलियम रिजर्व की तरह देखे जा सकते हैं। इंडिया एमर्ज इंडियन emergency reserve of petroleum production are equivalent to 77 days of net import. The country import 244 metric ton crude oil, accounting for overall 85% of their crude oil needs. Rapido focus on Delhi, uh, partners of ONDC. Rapido sharply focus on Delhi, which become largest market across India. Company now partnering with the open e-commerce network to ONDC to depending integration with public transport system. Delhi, our largest market, every day 8 lakh consumer use Rapido in along Delhi. अरविंद सनत जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव और को फाउंडर है रैपिडो के, कि किस तरह से 1 लाख डेली राइडर्स है जो यूज करते हैं प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम मेट्रो स्टेशन और की तरफ इंटीग्रल नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स के द्वारा जो एक्सेसिबिलिटी है वो इजी हो जाएगी, और जो मेट्रो टिकट विद इन ऐप वो जो है प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कनेक्टिविटी और जो कम्युनिकेशन है उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पर बाइक राइडर्स और मेट्रो ट्रेवल्स के थ्रू किया जा सकता है। रैपिडो isn't the only company along with the ONDC vision of open mobility. Naam Yatra was the first integrate with ONDC and introduce a safe SaaS model to players like Uber and Ola. Thank you for watching. Like, share, and subscribe to Answer Kari.